السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حکومت اور آر ٹی سی کے درمیان بات چیت کامیاب، 16% انٹرم ریلیف دینے کا فیصلہ، مسلمہ مزدور یونین ہڑتال سے دستبردار۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کے لیے پیش رفت، اراضی حصول کے بعد کاموں کا ہوگا آغاز۔ موسم برسات سے قبل سڑکوں کے تعمیری کام مکمل نہیں، منظور شدہ کاموں کو مکمل کرنے عہدیدار پر امید۔ اور چادر گھاٹ علاقے میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل، پولیس مصروف تحقیقات۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حکومت اور آر ٹی سی کے درمیان بات چیت کامیاب ہوئی ہے۔ 16% انٹریم ریلیف دینے کے حکومت کے فیصلے کے بعد ٹی ایم یو یونین نے ہڑتال سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اتوار کے دن صبح سے ہی منسٹر کوارٹرز میں وزراء گروپ کے ساتھ ملازمین تنظیموں کی بات چیت اور وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد وزیر فائنانس ای راجندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت آر ٹی سی ملازمین کو 16% عبوری راحت دینے کا فیصلہ لیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے سے حکومت پر 16 کروڑ کا بوجھ عائد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ دیگر مطالبات اور فٹمنٹ کے معاملے میں ہائی لیول کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کمیٹی مختلف امور کا جائزہ لینے کے بعد حکومت کو ایک رپورٹ پیش کرے گی۔ اس کے بعد ہی فٹمنٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس موقع پر ٹی ایم یو کے اعزازی صدر ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت آر ٹی سی کو مستحکم کرنے کے بعد فٹمنٹ کا اعلان کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے تشکیل دی گئی ہائی لیول کمیٹی مختلف امور کا جائزہ لے گی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت سبسڈی کی رقم کی ادائیگی کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے وقت عام ہڑتال کے دنوں کی اجرت فوراً ادا کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ انٹرم ریلیف عارضی طور پر دی جانے والی راحت ہے۔ ہائی لیول کمیٹی کی رپورٹ کے بعد فٹمنٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے صرف حکومت کی تائیدی تنظیم ٹی ایم یو نے ہڑتال سے دستبرداری اختیار کی ہے، جبکہ آر ٹی سی جے اے سی ہڑتال کے فیصلے پر قائم ہے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کے آغاز کے لیے اراضی حصول کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میٹرو ریل کے ایم ڈی این وی ایس ریڈی نے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پرانے شہر میں سڑکوں کی توسیع 80 تا 100 فٹ رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں اراضی حصول کے لیے بھی عمل شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اراضی حصول کا عمل مکمل ہونے کے بعد مہاتما گاندھی بس ڈپو سے فلک نما روٹ کے کاموں کا آغاز ہوگا۔ این وی ایس ریڈی نے بتایا کہ اکتوبر میں امیر پیٹ تا ہائی ٹیک سٹی روٹ پر میٹرو ریل کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ این وی ایس ریڈی نے بتایا کہ شمس آباد ایئرپورٹ کے لیے شہر کے دونوں جانب سے میٹرو ٹرین کی سہولت رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ شمس آباد ایئرپورٹ تک توسیع دینے کی جائزہ رپورٹ کی ذمہ داری دہلی میٹرو کارپوریشن کو دی گئی ہے۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمن کی جانب سے راج بھون میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، کونسل کے صدر نشین سوامی گوڑ، نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، اقلیتی بہبود کے مشیر اے کے خان اور دیگر معزز شخصیتوں نے شرکت کی۔ اہم اپوزیشن قائدین نے افطار پارٹی میں شرکت نہیں کی۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی سی رامچندر ریڈی اور سابق ڈی جی پی دنیش ریڈی نے شرکت کی۔ محکمہ تعلیم میں اساتذہ کے تبادلوں کی درخواست پیر کے دن بھی داخل کی جا سکتی ہے۔ شیڈول کے مطابق 10 جون کو آخری تاریخ مقرر تھی۔ حکومت نے اس میں ایک دن کی توسیع دی ہے۔ 20 تا 23 جون آپشن دینے کی سہولت رہے گی۔
25 जून को तबादलों की कतई फहरिस्त जारी होगी और 26 जून को तबादले के अहकाम जारी किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने जारिया साल चौथे मरहले के हरितहारम प्रोग्राम की तैयारियों का आगाज किया है। इस साल शजरकारी के लिए 3,500 नर्सरियों में 42 करोड़ 18 लाख पौधे तैयार रखे गए हैं। हुकूमत ने इस साल 38 करोड़ 27 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा है। जंगलाती इलाके में 3 करोड़ 93 लाख पौधे लगाए गए। मौसम बरसात के आगाज के साथ ही ये प्रोग्राम शुरू किया जाता है। इस बार पौधे लगाने में नुमाया रोल अदा करने वालों को नकदी इनाम भी दिए जाएंगे। इस बार स्कूल्स को सरसब्ज व शादाब बनाने का मंसूबा बनाया गया है। कांग्रेस के 2 अरकान की असेंबली रुकनियत की मनसूखी को बहाल करने के अदालत के फैसले के बाद हुकूमत के अदम अमलावरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पीर से एहतजाज का आगाज करेगी। कांग्रेस के अरकान मुकन्नना पार्लियामेंट अरकान पीर के दिन असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी से मुलाकात करते हुए अदालत के फैसले से स्पीकर को वाकिफ करवाएंगे और इन दोनों अरकान की रुकनियत को फौरन बहाल करने का मुतालबा करेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी इसके अलावा आलमपुर और खम्मम में इसी मसले पर जलसे-आम मुनक्किद करेगी और हैदराबाद में 24 घंटे की भूख हड़ताल का भी ऐलान कर चुकी है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में सड़कों की तामीर का काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने 10 जून तक सड़कों के मरम्मती व तामीराती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी, जिसको अमली जामा पहनाने में अजीम तर बलदिया हैदराबाद नाकाम हो चुका है। 781 करोड़ की लागत से 120 पैकेजेस के लिए टेंडर्स तलब किए गए थे। 381 करोड़ से 53 बीटी रोड के पैकेज के काम, 280 करोड़ की लागत से 52 सीसी रोड के पैकेज के टेंडरों को मंजूरी दी गई थी। दीगर 15 पैकेजेस को फुटपाथ के कामों के लिए मंजूरी दी गई थी। ओहदेदारों का कहना है कि गर्मा के मौसम में सीसी रोड के बजाय बीटी रोड के कामों को तरजीह दी गई। शब रोज काम करने के बावजूद 270 करोड़ के बीटी रोड्स के काम ही मुकम्मल हुए। ओहदेदारों ने कहा कि अगर मौसम ने साथ दिया तो जून के आखिर तक ये काम मुकम्मल होंगे। जहां तक सीसी रोड की तामीर का काम है, 60 करोड़ के काम ही मुकम्मल हुए हैं। मौसम बरसात रियासत में दस्तक दे चुकी है। इसके बाद सड़कों की तामीर का काम यूं ही तात्तुल का शिकार दिखाई दे रहा है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। गोलकुंडा बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से इंडो थाई बॉक्सिंग इंटरनेशनल मुकाबलों में शेख एजाज अहमद ने कामयाबी हासिल की। दारुस्सलाम पहुंचकर शेख एजाज ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने बॉक्सिंग को फरोग देने के लिए ताउन की अपील की है। माह रमजानुल मुबारक रूहानियत के साथ बेहतर मईशत से भी इबारत है। हैदराबाद के तारीखी चांद मीनार के अतराफ का इलाका रमजान शॉपिंग का मरकज बन गया है। पेश है कैमरामैन कैशरिफ अली खान के साथ नुमाइंदे 4TV एसएम रफी की ये रिपोर्ट। माह रमजानुल मुबारक अब सिर्फ चंद दिन का मेहमान है। इस माह मुबारक के दौरान हैदराबाद का तारीखी चार मीनार और इसके अतराफ व अकनाफ का इलाका एक वसी जगमगाते हुए बाजार में तब्दील हो जाता है। मदीना सर्कल से पंच मोहल्ला 1.5 किलोमीटर से जायद के फासले पर सैकड़ों दुकानें सज गई हैं। मुस्तकिल दुकानों के अलावा सीजन के लिए गैर मुस्तकिल दुकानात की तादाद कुछ कम 1000 हो गई। मुकामी गैर मुकामी हर दिन हजारा अफराद का अज़्दाम देखा जा रहा है। माह सियाम के आखिरी दहे में चार मीनार के बाजार में आने वालों की तादाद 50,000 से तजाविज कर गई है। हर तरफ दुकानें, हर तरफ हुजूम, मेवे, फैंसी आइटम्स, खाने पीने की अशिया, इन्विटेशन ज्वेलरी, मलबूसात, कालीन, गुलदस्ते, अतरियात, कोई ऐसी अशिया नहीं जो इस बाजार की रौनक ना बनी हो। हैदराबाद, अजला तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
महाराष्ट्र के अलावा मुल्क व बैरून मुल्क सियाहत के लिए आने वालों की बड़ी तादाद और बारौनक बाजार में देखी जा रही है। ये बाजार दिन से ही शुरू हो जाता है, जो शहर तक पूरी आब व ताब के साथ जारी रहता है। जितने लोग दिन आते हैं, तकरीबन इससे कहीं ज्यादा रात में इस बाजार में देखे जा सकते हैं। इस बाजार की खुसूसियत यह है कि यह मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का एक आयनादार है। यह बाजार जुनूबी हिंद का सबसे बड़ा सीजनल बाजार बन गया है। इस मर्तबा कारोबार उरूज पर है। कारोबार करने वालों ने इंतजामिया बिलखुसूस पुलिस के ताउन की सताइश की है। जिस तरह हैदराबाद की शनाख्त हर साल 1 जनवरी से शुरू होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश से होती है, अब ऐसा ही कुछ माह रमजान मुबारक के चार मीनार का बाजार का मौकूफ बन गया है। नुमाइश के लिए टिकट्स लेकर जाना पड़ता है, लेकिन चार मीनार का बाजार बिना टिकट के दिन रात खुला है। इस बड़े बाजार के लिए ट्रैफिक नज्म व लॉ एंड ऑर्डर सिटी पुलिस के लिए एक संगीन चैलेंज है। ताहम कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार की कामयाब हिकमत अमली के सबब यह बाजार पुलिस की बेहतर कारकर्दगी का नमूना पेश कर रहा है। पुलिस की जानिब से 24 घंटे पब्लिक अनाउंसमेंट का इंतजाम किया गया है। इस बाजार में बच्चों और बड़ों के गुम होने, सामान के खो जाने की 50 से ज्यादा शिकायतें वसूल हो रही हैं। पुलिस इस सारे बाजार पर अपनी गिरफ्त रखी है। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस की शी टीम, सादा लिबास मुतहरिक पुलिस पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरों के जाल के सबब पाकिट मार और छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सैकड़ों हाकर्स भी पुरसुकून तरीके पर कारोबार कर रहे हैं। हाकर से मामूल वसूल करने और गैर समाजी अनासिर और पुलिस वालों को भी मामूल से दूर रखा गया है। जब किसी का बच्चा या कोई फर्द गुम हो जाता है, तब इसके खानदान पर क्या गुजरती होगी। पुलिस के मौसर निगरान जाल के सबब गुमशुदा बच्चों को इनके खानदान के हवाले किया जाता है। तब यह जज्बाती मंजर मुल्क भर में हैदराबादियत की इंसानी दोस्ती को बयान करता है। ऐलान करने का बार बार यही मकसद है कि आपको होशियार किया जाता है। आपका कीमती सामान की आप खुद हिफाजत कीजिए। आपका मोबाइल फोन, कैश या खरीदा हुआ कीमती सामान आप खुद हिफाजत से रखिए। आपके आसपास मर्द हजरात या खवातीन आपका जहन हटाकर आपका कीमती सामान चुरा सकते हैं। इसलिए आपको बार बार होशियार किया जाता है कि रमज़ान के शॉपिंग के दौरान आपका सामान चोरी हो सकता है। अगर कोई शख्स मामूल वसूल करता है तो आप चार मीनार पुलिस स्टेशन को रब्ता कीजिए। सर्कल साहब का नंबर है 9490616481 से आप रब्ता कीजिए। इस वसी बाजार में आने वालों के लिए पार्किंग के मसले को आर्जी तौर पर हल किया गया है। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के सबब जो हाकर्स परेशान थे, वो सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को दुआएं दे रहे हैं। इन कायदीन की मौसर हिकमत अमली के सबब चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट माह रमजान मुबारक की शॉपिंग का बैन रियासती एक मरकज बन गया है। इस बाजार में कारोबार करने वाले और खरीदारी के लिए आने वाले खुश देखे जा रहे हैं। तारीखी चार मीनार का दामन माह सियाम की बरकतों के नज़ारों के साथ साथ हर अफराद की रोजी रोटी का सबब बन गया है। देखिए, हैदराबाद कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब का ये ऑर्डर है कि जो फ्रेंडली पुलिस भी है और यहाँ पर काफ़ी लोग गुम जाते हैं और काफ़ी लोगों का सामान चोरी हो जाता है। तो ये डीसीपी साहब जो हमारे को जो इंस्ट्रक्शन दिए, तो इंस्पेक्टर साहब को दिए। इंस्पेक्टर साहब हमारे खास तौर पर यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए लगा दिए कि जो बच्चे गुम जाते हैं या किसी का कोई मिस हो जाता है तो फ़ौरन इंस्पेक्टर साहब को मिलना है, और हम जो भी गुम जाते हैं उनको फ़ौरन अनाउंसमेंट कर देते हैं और वो आकर यहाँ पर मिल जाते हैं। ये अनाउंसमेंट आप रोज़ाना कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं और कितने बजे से कितने बजे तक कर रहे हैं? देखिए, ये हम मुसलसल 15 रमज़ान से ये 15 रमज़ान के बाद भीड़ ज़्यादा हो जाती है। 15 रमज़ान से हम कंटिन्यू ये 12 घंटे कर रहे हैं, इसमें से 6 घंटे शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो ये बताइए कि आप ये करने का जो असर हो रहा है, पब्लिक को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये काफ़ी लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस में यहाँ के हैदराबाद के भी है और नॉर्थ के भी है, मुंबई से, मध्य प्रदेश के, केरला के लोग भी है।
वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे से हाथ मिला रहे कर रहे, आप लोगों की बहुत अच्छी फैसिलिटी बता रहे हैं। तो हमको भी बहुत खुशी होती है कि हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस की तारीफ़ करके जाते हैं। तो यहाँ पर डेली के मैं समझता हूँ 40-50 आदमी आ जाते हैं। मिसिंग केसेस होते हैं। मिसिंग केसेस तो उनके माँ बाप का रिएक्शन कैसा होता है जब उनके बच्चे गुम जाते हैं मार्केट में, तो आपके थ्रू उनसे मिलते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? बाज़ लोग ऐसे हमको गले लगा लेते हैं, रोते भी है, तो इतनी खुशी मिलती है। मैं नहीं, हमारे जितना भी डिपार्टमेंट स्टाफ वाले हैं बहुत खुश होते हैं। और जब वो माँ रोती भी आती है और बच्चे को लेके हंसते हुए जब जाती है तो हमारा भी दिल बहुत खुश होता है। आप लोग ये भी अनाउंस कर रहे हैं सीपी साहब के इंस्ट्रक्शन पे कि मामूल अगर कोई लेता है, अनसोशल एलिमेंट की जानिब से अगर कोई मामूल वसूल की जाता है तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे कोई केसेस आए आपके पास मामूल के? जी अभी मैं तो यहाँ पर हूँ, ऐसे मामूल हो सकते तो हमारे इंस्पेक्टर साहब के नॉलेज में ये पूरी नॉलेज है कौन कौन है क्या है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फुलबाग में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन बलदिया फहद बिन अब्दाद और साबिक रुकन समद बिन अब्दाद ने रोज़ेदारों का इस्तकबाल किया। कुरमागुड़ा की कदीम रिवायती दावत इफ्तार का सैयद फंक्शन हॉल में एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर यौम दावत इल्लाह के उन्वान से गैर मुस्लिम बरादरान वतन के लिए खुसूसी लेक्चर का भी एहतमाम किया गया। ब्रादर सिराज रहमान ने तेलुगु ज़बान में इस्लाम और रोज़े का तारुफ करवाया। गैर मुस्लिम भाइयों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। जावेद खान, जग्गा भाई, परवेज़ मामा, फैसल और आसिफ लाला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। गुड्डी मलकापुर की तरकारी मार्केट में स्वच्छ हैदराबाद के तहत साफ सफाई मुहिम चलाई गई। इस मौके पर करीब 250 तुलबा और खानगी मुलाजिमत करने वालों ने साफ सफाई के मुख्तलिफ काम अंजाम दिए। रमनसपुरा इलाके में 3 दिन पहले हुए एक सड़क हादसे में 4 साला लड़का फौत हुआ। इसके अफराद खानदान ने हफ्ते की रात काले पत्थर पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए कातिल को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। 5 जून को पेश आए सड़क हादसे में 4 साला लड़का स्कॉर्पियो की जद में आ गया था। सईद नामी शख्स जो स्कॉर्पियो चला रहा था गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि सईद के घर वाले भी गायब हैं। जैसे ही उनका पता चलेगा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मयूर पान शॉप के प्रोपराइटर महावीर प्रसाद ने उनके फर्जंद उपेंद्र पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। इन्होंने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से कहा कि सोनू शर्मा मयूर पान शॉप को बदनाम करने की साजिश कर रही है। इन्होंने मजीद कहा कि सोनू शर्मा फोन पर उनकी बहू को धमकियां दे रही हैं। वाज़ेह है कि सोनू शर्मा ने उपेंद्र पर इल्जामात आयद किए थे कि इन्होंने पान में ड्रग्स मिलाकर उनका जिनसी इस्तेहसाल किया है। चादरघाट की साई मंदिर के पास एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की अलग सुबह के औकात में मुकामी अफराद ने फुटपाथ पर एक शख्स की लाश खून में लथपथ हालत में देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। एसीपी सुल्तान बाजार डॉक्टर चैतन्या और इंस्पेक्टर अफजलगंज पुलिस पीजी रेड्डी ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर जायजा लिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त दीपक सिंह की हैसियत से की गई है। वो फुटपाथ पर अपना गुजर बसर करता था। नामालूम अफराद ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब दीपक सिंह पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत और आरटीसी के दरमियान बातचीत कामयाब, 16% इंटरिम रिलीफ देने का फैसला। मुसल्लिमा मजदूर यूनियन हड़ताल से दस्तबरदार।
पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के लिए पेशरफ्त, अराजी हुसूल के बाद कामों का आगाज होगा। मौसम बरसात से कबल सड़कों के तामीरी काम मुकम्मल नहीं, मंजूर शुदा कामों को मुकम्मल करने अहदेदार पुरुम्मीद। और चादरघाट इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।